Hello everyone. In this video we are going to discuss about the cell. So let's have a brief introduction about what is cell. So whenever we see in our surroundings we see both living and non-living things. But have you ever thought that what is the thing that differentiate between living and non-living? So the answer to this is the presence of cell. Cellular organization is the property of living organism. Cellular organization is the defining feature of living organisms. All the living organisms are made up of cells. Be it a plant, animal, or microorganisms, all are made up of cells. Now, uni means single and cellular means cell. So, unicellular organisms are formed of single cell and multi means many and cellular means cell. Multicellular organisms have millions and billions of cells in their body. So just like a home is made up of many small bricks, multicellular organisms are made up of many cells. Cell is the structural and functional unit of life. Now why it is a structural unit? As it forms the basic structure of an organism. Basic structure of an organism. And why it is functional? Because all the essential life processes like metabolism, growth, reproduction takes place inside the cell. Essential life processes. So it is the structural and functional unit of all the living organism. It is the smallest unit of life and capable to carry out all the life activities. सेल जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की. अगर सेल से कोई भी चीज़ छोटी है सो वी डू नॉट कंसिडर इट एज अ लिविंग थिंग. सो सेल जो है सबसे छोटी यूनिट है एंड इट इज़ कैपेबल टू कैरी आउट ऑल द लाइफ एक्टिविटीज. Cell can exist independently and can perform all the life processes. Now here are some characteristics of the cell. Cells are the building blocks of plant and animals. As we have discussed earlier in the previous slide that all the organisms are made up of cells. A cell is capable of independent existence and can perform all the basic functions of life. एक सेल के अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और भी कई सारी चीज़ें, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन है, वो हमारी बॉडी के जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है. हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि एटीपी जनरेट करता है. So cell can perform all the basic functions of life. Every organism starts its life as a single cell. Now what does it mean? Whenever there is a fusion between a sperm and ovum, it will form zygote. And zygote is single celled. Zygote is single cell. Now further there will be mitotic divisions in the zygote and there will be the increase in the cell number. So जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं. जब भी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है. फर्दर जाइगोट के अंदर जो है माइटोटिक डिविजन्स होती हैं और बहुत सारे जो है सेल का जो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं. ईच सेल हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन. हर एक सेल का अपना एक लाइफ स्पैन होता है. पुराने सेल्स जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय द न्यू सेल्स और ये किससे होता है? बाय द माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन ये हम सेल डिवीजन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे माइटोटिक डिवीजन होती है और सेल्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं. अब नाउ सेल्स जो हैं वो कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यू. टिश्यू जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन और एक पर्टिकुलर मैनर में कंबाइन होके बनाता है ऑर्गन. फिर बहुत सारे जो ऑर्गन है वो ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम.
जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है ऑर्गेनिज्म. सो मैनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, many tissues combine together to form an organ, and organ work together as a system which is known as organ system and form an organism. सो इस वाली सिर्फ इस फ्लो चार्ट से हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पता लग जाती है कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल. सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ. हर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है अपना लाइफ को, और मैनी सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फर्दर कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है. जैसे कि ऑर्गन सिस्टम कैसे कि जैसे कि हम ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, स्टमक आता है, राइट, इंटेस्टाइन आती है, दोनों लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल, लीवर आता है, पैनक्रियाज एंड मेनी मोर एक्सेट्रा, माउथ, हमारी ईसोफेगस, मेनी ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, राइट. सो ऐसे एक ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा बनता है. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल. अब अगर हम डिस्कवरी देखें तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट देखेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में. रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर सेल. He examined thin slices of cork. Cork is obtained from the bark of tree. What he saw that there are large number of compartments or boxes which are forming a honeycomb-like structure, and he called these compartments cell. रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क लिया, कॉर्क के पीस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा और उन्होंने देखा कि जो कॉर्क थी उसके वो एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही थी जिसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे. उन्होंने इस कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया, सेल. उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल. बट रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर करा था वो डेड सेल था. जो कॉर्क के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, तो ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द डेड सेल. The next scientist is Anton von Leeuwenhoek. He was the first to observe the living things. He was the first scientist to discover the living things. He took pond water and observed it under microscope and saw unicellular organisms. He was so fascinated with this, so he started observing many things under that. एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने क्या करा था कि उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर पॉन्ड का वाटर लिया और उसको ऑब्जर्व करा, और उन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे जो थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे. इस चीज को देख के वो इतना ज्यादा सरप्राइज और फैसिनेट हो गए कि उनके आगे जो भी चीज आती थी वो उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखने लग गए. सो उन्होंने बहुत सारे सेल्स को देखा जैसे कि आरबीसी, स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमन, फिश, फ्रॉग और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे पॉन्ड वाटर के अंदर. सो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो थे, ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द लिविंग सेल एंड रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द डेड सेल. सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किसने डेड और किसने लिविंग सेल को डिस्कवर करा था. नाउ द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या है? दो साइंटिस्ट थे, स्क्लीडन एंड श्वान. स्क्लीडन जो थे वो बोटेनिस्ट थे और जो श्वान है वो जूलॉजिस्ट थे. स्क्लीडन और स्क्वान ने कलेक्टिवली सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया. स्क्लीडन एज ही वाज द बोटेनिस्ट, तो उन्होंने प्लांट्स की बारे में पढ़ा और मतलब अपनी थ्योरी दी, और श्वान जो है वो एनिमल जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल्स की स्टडी करी. सबसे पहले हम देखेंगे स्क्लीडन ने क्या देखा. स्क्लीडन ने कई सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करा अंडर द माइक्रोस्कोप और उसने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सेल्स से मिलके बना हुआ है और ये सेल्स आगे चल के बनाते हैं टिश्यू. सिमिलरली श्वान ने क्या करा, उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल स्टडी करी और उसने देखा कि एनिमल के सेल्स के एक आउटर लेयर है एनिमल्स के सेल्स के बाद जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं.
उसके बाद श्वान ने क्या करा, उसने प्लांट सेल्स की भी जो है वो स्टडी करी और उसने कहा कि प्लांट्स के सेल्स के अंदर एक यूनिक फीचर होता है जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही मिलता है। और वो क्या फीचर था कि प्लांट सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे हम आज सेल वॉल बोलते हैं, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है। इन दोनों ने ये तो बता दिया कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हुए होते हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है। सो अनदर साइंटिस्ट रुडॉल्फ विर्चाउ in 1885 he was observing bacteria under the microscope। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को डिवाइड कर रहा था। तो जब वो बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे तो उस टाइम पे बैक्टीरिया ने डिवीजन करी, तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जो है वो बन गए। तो ये देख के वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हुए और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक फ्रेज दिया, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। व्हाट डज इट मीन्स? It means that all the cells arises from pre-existing cells। एक जो भी सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार बनते हैं, फर्दर आगे चार से आठ सेल्स जो हैं वो बनते हैं। सो सेल थ्योरी अगर हम देखें तो तीन साइंटिस्ट ने दी थी, स्क्लीडन, श्वान और रुडॉल्फ विर्चाउ ने आगे इसे फर्दर ब्यूटिफाई कर दिया था इस पूरी की पूरी सेल थ्योरी को। अगर हम एक्सेप्शन देखें वायरस सेल थ्योरी का, तो एक्सेप्शन जो है वो वायरस है। क्यों वायरस है? क्योंकि वायरस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। वायरसेस आर नॉट सेल्स, क्योंकि ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स इन विच जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वेदर इट कुड बी अ डीएनए और आरएनए, इट इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वायरसेस आर नॉट लिविंग and they are also not non-living, they are particles, so these are the exceptions to the cell theory. Now the next is about the cell number, shape and size. Now the अगर हम साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा होता है, जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, और हम इसका जो साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ के अंदर। अगर हम देखें कि सेल्स को हम किस चीज के अंदर जो है उसके साइज को डिनोट करते हैं, तो सेल्स को जो मेजर करने की यूनिट है, सेल मेजर करने की जो यूनिट है वो माइक्रोमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट जो सेल है वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है, और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। नाउ अगर हम शेप की बात करें तो जो शेप होती है सेल्स की वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, क्या सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी हिसाब से जो है उसकी शेप होती है। जस्ट लाइक आरबीसी इज राउंड एंड बाइकनकेव। Why it is round and biconcave? Because the function of RBC is to transport the gases to various organs. So the shape is circular and biconcave to move easily through the small spaces. The next is WBC. WBC is amoeboid shape. The function of WBC, there are various functions of WBC. So its shape is amoeboid with pseudopodia to squeeze out through the capillary wall. कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, दे आर वेरी थिन। सो इसके अंदर से ये इजीली निकल सके इसलिए ये इसकी अमीबॉइड शेप होती है, सो दैट इट विल मेक इट स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल।
Now the nerve cells are long and branched. Why? Because to conduct the impulse to the distant parts of the body. जब सपोज कर लो कि ये नर्व इम्पल्स है, इसको किसी ऑर्गन तक लेके जाना है, सो ये लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि ये डिस्टेंट पार्ट्स जो बहुत दूर दूर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहां तक ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सके, इसलिए ये बहुत ज्यादा लंबे और ब्रांच्ड होते हैं एंड द नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल. नाउ द ट्रैकीड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. Xylem tracheids are present in plants and their function is to conduct the transport of water from the root. ये वाटर का कंडक्शन कराते हैं रूट से. वाटर कंडक्शन फ्रॉम रूट. तो अब रूट से कोई भी चीज ऊपर स्टेम या लीफ तक लेके जानी है तो लंबे लंबे सेल्स तो होना ऑब्वियस सी बात है. सो ट्रैकीड्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं. तो शेप जो है किसी भी सेल की उसके फंक्शन पे बेस्ड होती है. नाउ द नंबर ऑफ सेल on the number of cells there are two types of cells, unicellular and multicellular. Unicellular मतलब कि single cell and multicellular मतलब कि many cells.